الحمدللہ کفا وسلام علی حبیبہ الذین اصطفیٰ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فمن شہد منکم الشہر فلیصمہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المتین الکریم۔ سب سے پہلے آقائے دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ محبت پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ کن چیزوں سے روزہ مکروہ ہوتا ہے؟ مکروہ کا بھی دو درجہ ہے، ایک تحریمی اور ایک تنزیہی۔ تو مکروہ تحریمی میں یہ حرام کے قریب ہوتا ہے، نزدیک ہوتا ہے۔ تو جس طرح فعل حرام کرنے سے آدمی گنہگار ہوتا ہے، اللہ کے عذاب کا حقدار ہوتا ہے، ویسے ہی مکروہ تحریمی کرنے والا آدمی بھی اللہ کے عذاب کا مستحق ہوتا ہے، گنہگار ہوتا ہے۔ مکروہ تنزیہی جس کو ناپسند تو کیا جاتا ہے مگر وہ گناہ نہیں ہے، یا اس کی وجہ سے وہ عذاب کا حقدار نہیں ہوتا ہے۔ کبھی کبھی مکروہ تنزیہی کو جائز بھی کہا جاتا ہے کہ وہ جائز ہوتا ہے لیکن ناپسند کہلاتا ہے، سمجھے نا۔ لیکن روزے کے باب میں جو مکروہ کہا گیا ہے یہ مطلقاً مکروہ کہا گیا ہے۔ جھوٹ، غیبت، چغلی، گالی دینا، بیہودہ باتیں کرنا، ان چیزوں سے روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ جیسا کہ کل کہا تھا کہ روزے کی نورانیت ختم ہو جاتی ہے، اس کی برکت ختم ہو جاتی ہے۔ روزے کی حالت میں بغیر عذر کے کسی چیز کو چبانا یا چکھنا، یعنی کھانے کی چیز، کہ اگر کوئی کھانے کی چیز ہے اور بغیر عذر اس چیز کو چبائے تو روزہ مکروہ ہو جاتا ہے۔ اس کے لیے عذر کیا ہے؟ عذر یہ ہے کہ مثلاً بچہ ابھی روٹی چبانے کے قابل نہیں ہوا ہے اور کوئی نرم چیز کھلانے کے لیے نہیں ہے، اور روزہ دار آدمی کے علاوہ کوئی اور نہیں ہے جو روٹی چبا کر بچے کو کھلا سکے۔ تو ایسے لوگوں کے لیے عذر ہے کہ روٹی یا کوئی بھی سخت کھانے کی چیز چبا کر بچے کے منہ میں دے دے، حلق میں دے دے، تو یہ ان کے لیے عذر ہے، تو ان کے لیے چبانا جائز ہے، اس سے روزے میں کراہت نہیں آتی ہے۔ ہاں اس میں یہ دھیان رکھنا ہوگا کہ چباتے ہوئے اس کا کوئی جز حلق سے نیچے نہ اترے، کہ کھانے پینے کی چیز چباتے ہوئے حلق سے نیچے نہ جائے۔ چکھنے کے لیے عذر کیا ہے؟ تو چکھنے کے لیے عذر یہ ہے کہ مثلاً کوئی شوہر بد مزاج ہے، یہ بڑا نازک مسئلہ ہے، نمک تیز ہو جائے تو گالی بک دینا، مرچ تیز ہو جائے تو گالی بک دینا، اور کہیں کہیں تو گالی ہی نہیں
प्लेट ही उठा के मुंह पे मार देते हैं, मार पीट कर देते हैं। शहरों में तो बहुत कम देखने में आता है इस तरह का मामला, गाँव में तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। वो भी इंसान है, भूल चूक हो जाती है। कभी कभी दोबारा शक्कर डाल देती हैं चाय में। आपके घर में भी होता होगा, मेरे घर में भी होता है, ऐसा बहुत होता है। ध्यान में है, एक बार नमक डाला, फिर दूसरी बार डाल दिया। मिर्च एक बार डालने के बजाय 2 बार डाल दिया, तो अब क्या करें। और कभी नहीं भी डालते हैं। तो ये इंसान है, इंसान की फितरत है भूलना, गलती करना। जिस तरह मर्द गलती करते हैं वैसे ही औरतें भी गलती करती हैं। लेकिन कहते हैं ना कि राज़ी खुशी से जहाँ ज़िंदगी गुज़रती है, तो हमारे गांव में कहते हैं कि रज़ामंदी की कश्ती खुशकी पे भी चलती है और नाराज़गी की कश्ती पानी में भी नहीं चलती है। तो ये पूरा मामला होता है कि मियाँ बीवी के बीच में अगर तालमेल अच्छा है तो ठीक है भाई, कोई बात नहीं, ऊपर से नमक ले लेंगे, या नमक ज़्यादा हो गया तो ठीक है भाई, थोड़ा पानी डाल के इसको कैसे भी ठीक कर लो, या आज कम खा लेंगे, है ना। लेकिन अगर नाराज़गी पहले से है तो भाई नाराज़गी जताने के लिए तो बहाना चाहिए, है कि नहीं। तो अगर बीवी तेज़ मिजाज भी है और उसको बर्दाश्त करके ले चलते हैं, हर बात में उनको सताने के बजाय उनकी गलतियों को माफ़ करते हैं, तो अल्लाह उस पर भी अजर अता फरमाता है। मसला ये था कि अगर शौहर बदमिजाज है और खाने में नमक तेज़ हो जाने या कम हो जाने की वजह से वो डांट फटकार करेगा या मार पीट करेगा, तो ऐसी खातून को इजाज़त है कि रोज़े की हालत में ज़रा इस्लाम के मिजाज को देखिए, शरीयत के मिजाज को देखिए। एक इंसान का कितना ख्याल रखा गया है कि ऐसी औरत को इजाज़त है कि वो रोज़े की हालत में सालन का एक हिस्सा ज़बान पे रखे, नमक, जायका, मिर्च मालूम करे और उसे थूक दे। कितनी आसानी चाहते हैं आप ख़रीदारी के लिए गए हैं, खाने पीने की चीज़ ख़रीदना है, और आप ये समझते हैं कि अगर नहीं चखा तो धोखा खाने का अंदेशा है, तो चख कर ख़रीदना भी जायज़ है। आप धोखा न खा लें तो आपके लिए चखना जायज़ है। चखने का मतलब सिर्फ इतना है कि ज़बान पे रखिए, उसका मज़ा मालूम कीजिए और थूक दीजिए। चखना ऐसा आमतौर पे कैसा होता है कि एक चम्मच लिया, खा लिया, है ना, 2 बोटी निकाला, खा लिया, और हम कहते भाई चख लिया, कैसा है नमक, वो गल गया है कि नहीं गला है, तो ये चखना है। लेकिन यहाँ जो चखने से मुराद है, ये चखना नहीं कि खा लिया जाए, है ना। चखने से मुराद जो यहाँ पर है वो इतना ही है कि ज़बान पे रखे और थूक दे। तो अगर किसी के साथ उज़्र है, कोई मर्द भी अगर किसी के यहाँ खाना पकाने की नौकरी करता है और मालूम है कि खाना अगर थोड़ा भी गड़बड़ हो गया तो नौकरी से निकाल देगा या डांट फटकार करेगा, तो ऐसे आदमी के लिए इजाज़त है। ख़वातीन घर में हैं, उनको मालूम है कि शौहर बदमिजाज है, तो उनके लिए इजाज़त है। तो जहाँ ज़रूरत हो वहाँ रोज़े की हालत में खाने की चीज़ को चख कर थूक देने से भी रोज़ा मकरूह नहीं होता है। हाँ, बिला उज़्र चखना ये मकरूह कर देता है ना।